students. I hope you are all well. Okay, then let's start with the revision of chapter number 4, that is cubes and cube roots. Okay, so first of all, what is a cube of a number? When a number is multiplied with itself 3 times, then it is called the cube of that number. It is represented by 3 to the power 3. Okay, 3 to the power 3 means 3 into 3 into 3. This is the meaning of cube. Okay, so its value is 27. In the same manner, if you want to find out the cube of 4 will be 4 into 4 into 4, that is 64. Okay, in the same fashion, you can find out the cube of any of the numbers. Suppose you have to find the cube of 1 upon 2. So cube of 1 upon 2 will be 1 upon 2 into 1 upon 2 into 1 upon 2, that is 1 upon 8. Okay. Now cubes and cube roots differ from squares. Okay, let's talk about cube right now. Cubes differ from squares in one manner. For a negative number, its cube is also negative. Its cube is also negative. And similarly, for a positive number, its cube is also positive. For a positive its cube is also positive. Okay, so this is what we have to learn in this chapter. Fine. So we will go from exercise to exercise. Okay, before we start with the chapter, let me give you the overview of the chapter. What is part of your course and what is not. Okay, first of all, the third exercise is that is finding out the cube root. Okay, I will explain to you how to find out the cube root, but this part of the chapter will not be coming into your exams. Okay, exercise 4.3 will not be part of your curriculum this year. मैं आपको सिखा दूंगा कि किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का क्यूब कैसे निकाला जाता है. इफ यू वांट टू ट्राई द क्वेश्चन, यू कैन ट्राई दीज. ओके, द क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट from examination point of view and from homework point of view, this exercise is not important. Okay, so we'll move on from exercise to exercise. We will divide this revision course in 2 parts. मैं इस रिवीजन के सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. एक पार्ट आज करेंगे, एक पार्ट हम कल करेंगे. ठीक है. टुडे वी विल सिंपली लर्न अबाउट क्यूब्स. ओके, किसी भी नंबर का क्यूब्स क्या है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके क्यूब में कैसे निकालते हैं, इस तरह की चीज़ें अब हम देखेंगे. वी विल सी कि कैसा रहता है. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स देखेंगे. जैसे 2 प्रॉपर्टी हमने देखा. वी लर्न अबाउट दैट क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर. ओके, बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स, लेट अस डिटरमाइन द क्यूब ऑफ first 10 whole numbers. So 0 का cube is 0, 1 cube is 1, minus 1 cube is minus 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is, let me make all of these equal to, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 8 8 is 64, 64 8s are 512, 9 cube will be 729. Okay, these are first 10 whole numbers. We have seen their cubes. Okay,
So now what we are going to see is, now we are going to observe the relationship between the unit digit of the perfect cube numbers, the unit digit of the perfect cube numbers and the numbers which they are cube of. ओके हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनका यूनिट डिजिट और उनका क्यूब करने के बाद जो यूनिट डिजिट है उनमें एक रिलेशन देखेंगे. क्या रिलेशन देखना है भाई, हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो उसका क्यूब करने पे आंसर में यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा. किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो उसका क्यूब करने पे आंसर में भी 0 ही आएगा. सेम विद 1, क्यूब करेंगे यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, उसका क्यूब करने पे भी आंसर में 1 आएगा. सेम विद 5, क्यूब कर 5 से पहले 4. सेम विद 4, कोई भी नंबर है जैसे आपके पास 24 है, इफ यू फाइंड द क्यूब ऑफ 24 द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दैट नंबर विल बी 4. सिमिलरली विद 5 का क्यूब करने पे भी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा. एंड देन 6 का क्यूब करने पे भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा. एंड लास्टली 9 का क्यूब करने पे भी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा. ओके, सो दिस इज फॉर 0 फॉर एनी डिजिट्स for any number that is ending with the digits 0, 1, 4, 5, 6 and 9. Okay, the unit place digit of cube of that number will also be 0, 1, 4, 5, 6, 9 respectively. ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि अगर कोई भी नंबर है 0 उसका क्यूब करेंगे, कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है उसका क्यूब करने पे भी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा. कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है उसका क्यूब करने पे भी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम 2, 3 और 8, 7 की. 2, 3, 8, 7 का याद करना बहुत आसान है. 2 का क्यूब करेंगे, कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे 2 है, इफ यू क्यूब दैट नंबर यू विल गेट 8. कोई भी नंबर है इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 3, इफ यू क्यूब दैट नंबर दैट इज 7. और इसका अपोजिट 8, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस की डिजिट 8 है उसका क्यूब करने पे आंसर विल बी 2, यूनिट डिजिट विल बी 2. एंड सेम विद 7, इफ योर नंबर्स unit place digit is 7 then the unit place digit of cube of that number will be 3. ओके, तो 3, 7 ऐसे इंटरचेंजेबल आ रहा है, 2 और 8 ऐसे इंटरचेंजेबल आ रहा है, बाकी सब जो नंबर है वही नंबर यूनिट प्लेस डिजिट पे शो करेगा. ओके, सो बाय दिस मेथड, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड, यू कैन without actually finding out the cube you can determine the relation between the unit place digits of the numbers. Okay, let us talk more about this chapter now. I am jumping on to the exercise. Okay, and as the question come in the exercise, this is exercise 4.1 on page number 66. As the question come, I will explain the questions and the concept related to them. Okay, question number 1 is cube of -6. Cube of -6 will be -1 to 6. Cube of 40, find it yourself. Cube of -5 by 11. Cube of 5 is 125. Cube of 11 is 1331. Answer is B. Cube of 0.3. Okay, cube of 0.3 is 3 upon 10 and you have to determine its cube. Okay, this is 3 upon 10 into 3 upon 10 into 3 upon 10. Once you simplify it, you will get the answer as 27 upon 1000, that is 0.027. Okay, and question number 5 is cube of 3 minus 1 upon 3. You have to determine the cube of 3 minus 1 upon 3. That means you have to find the value of 3 minus 1 upon 3 into 3 minus 1 upon 3 into 3 minus 1 upon 3.
3 माइनस 1/3 का क्यूब निकालने का मतलब है कि केवल 3 का क्यूब और 1/3 का क्यूब निकाल के माइनस करना नहीं, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल टर्म विद इटसेल्फ 3 टाइम्स और फिर फाइंड आउट द आंसर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टू टर्म्स. दिस विल बी 3 3s are 9 minus 1 and minus 1/9 plus 1/9. इसको सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 7 प्लस 1/9 टू बी मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 1/3. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई? पहले तो 7 से सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1/9 से सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है. पहले भी मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई किया था. आई डिड दैट अ बिट क्विकली. 7 3s are 21 minus 7/3 plus 1/3 minus 1/27. सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम इज 27. सॉरी, पहले बाकी चीज़ें एलसीएम ले लेते हैं, फिर 21 की बात करें. 21 माइनस प्लस एलसीएम इज 27. 7 9s are 63 minus 63. 9 1s are 9 plus 9 and minus 1. We'll simplify it. This will be 21 plus, this is 64. 64 minus 9 is minus 55/27. Okay. So you have to simplify this. Take the LCM. इसको simplify कीजिएगा. Whatever the answer is, that is the answer. आपको उस हिसाब से ऑप्शन मिल जाएगा. Okay. Next is question number 6. Which of the following statements are false? A is cube of any natural number is also an even natural number. किसी भी even number का cube हमेशा even ही होगा, correct है. Odd number का cube हमेशा odd ही होगा. Cube of a number ending with 3 or 7. देखो, कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट अगर 3 है तो उसके क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पर डिजिट 7 आएगा. ये हम अभी पढ़े. यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ 36 इज 6. 36 जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 6 है, क्यूब करने पे भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, करेक्ट है. लास्ट ऑप्शन इज क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 0 हैज 2 zeros एट इट्स एक्सट्रीम राइट. ओके, ये ऑप्शन गलत है. इसके एक्सट्रीम राइट पे 3 zeros होंगे. इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 1 0, उसके एक्सट्रीम राइट पे 3 0 होंगे. इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 2 zeros, उसकी एक्सट्रीम राइट पे 6 zeros होंगे. ओके, moving on. Now we will see question number 7. I'm going through each and every question quickly, okay, because this is obviously a revision class. I will not go through all the questions, all the parts of these questions, okay. And for your practice, you have to practice all the questions of this exercise so that you can perform well in your exams. Question number 7 is find the cube of each of the following numbers. You have to find the cube of each of the following numbers. आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, you will get your answer. Question number 8 is once again you are given some rational numbers. You have to find the cube of each of them. Okay. For example, 2 minus 2/3, its cube will be minus 8/27. Next is question number 9, जिसमें आपको क्यूब निकालना है. I will explain one question for you. I will hope के बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर पाएँ. I will take its D part. Question number 9, I am taking its D part. You have to find the cube of 1.3. Okay, so like I told you earlier, write 1.3 as 13/10 and you have to determine its cube. So first of all, you should know the cube of 13. अगर आपको cube of 13 नहीं पता तो 13 का cube निकालिए. Cube of 13 is square of 13. 13 square I know as 169. That is 13 into 13 I know as 169. और इसमें आपको 13 का मल्टीप्लिकेशन करना है. 3 9s are 27, 3 6s are 18, 19 20, 21, 3 1s are 3 4 5,
9 6 1 2 0 12 1 2। गलत है यार कुछ, वापस देखते हैं। 169 13 3 9 27 3 6 18 19 20, यहाँ मिस्टेक किया था। 3 1 3 4 5, दिस इज 7 9 6 1 7 9 1 2 2 1s 9 7। okay, so that is the cube of 13 2197. so this will be equal to 2197 upon 1000, and this will be 2.197. like this you have to do rest of the questions. Next is question number 10. Which of the following numbers are perfect cube? इनमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट क्यूब है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 11 12 तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं. इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर क्या होता है बताते हैं बेटा जी आपको. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स टेक इट सी पार्ट. सी पार्ट इज 4096. हमको बताना है वेदर दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन. इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. तो स्टार्ट विद 2 2 2 ज़ा 4 0 2 5 ज़ा 10 सॉरी 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 5 ज़ा 10 1 2 2 256 2 128 2 64 64 के आगे 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड फाइनली 2 1. ओके, अब हमको क्या करना है, पेयरिंग करनी है. कितने की, 3 3 का पेयरिंग करना है, बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. तो परफेक्ट क्यूब के लिए कितने का पेयरिंग होगा, 3 3 का. तो एक पेयर बनाइए, एक पेयर बनाइए, एक पेयर बनाइए, एक पेयर बनाइए. सो वी हैव 4 परफेक्ट पेयर्स. मेरे पास 4 पेयर आ गए कितने के, 3 3 के. ओके, सारे पेयर कंप्लीट हैं. सारे पेयर में 3 डिजिट्स अवेलेबल हैं, सेम डिजिट्स अवेलेबल हैं. दैट इज व्हाई दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. इसीलिए ये नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब. ओके, इसी तरह से लेट मी शो यू डी पार्ट एज वेल ऑफ द सेम क्वेश्चन. डी पार्ट इज 2 4 3 0. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10. 5 से करते हैं. 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 20 2 3 5 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 5 3 ज़ा 15. 2 4 3 आ गया. 17 का स्क्वायर है शायद. 7 7 ज़ा नहीं, 2 4 3 17 के स्क्वायर नहीं है, 3 की टेबल में आ रहा है. 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 3 27 3 9 3 3 3 1. तो यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं. ये 3 का ग्रुप बना, इन 3 का यहाँ पे 3 का ग्रुप नहीं बना, इनकम्प्लीट ग्रुप है. 5 का भी ग्रुप नहीं बना, 2 का भी ग्रुप नहीं बना. तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ग्रुपिंग नहीं हो पा रही. ठीक है, 3 3 की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही. दैट इज व्हाई दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. सो यू विल ट्राई टू डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. अगर आपके 3 3 के ग्रुप बनते हैं प्राइम फैक्टर्स के, देन द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. अदरवाइज इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, next is question number 11 and question number 12. question number 11 and question number 12 are broadly alike. जहां तक है एक जैसे क्वेश्चन हैं. ये किस तरह से है देखते हैं. okay, let us do question number 11. What is question number 11? Question number 11 is, by what smallest number each of the following numbers be multiplied to get a perfect cube?
by what smallest number each of the following number be multiplied to get a perfect cube. क्या है कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, लेट अस टेक वन एग्जांपल बी पार्ट. ओके, बहुत बड़ा नंबर है तो आई एम टेकिंग दिस वन 10584. सो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी डिड अर्लियर, हमको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन इट्स प्राइम फैक्टर्स. आप लोग भी निकालिए, चेक कीजिए मैं सही कर रहा हूँ क्या. 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6. Now this is 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9, 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3. 4 4 1 तो मेरे को पता है 27 का होता है. 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 3 4 12, 3 9 27, और 49 के लिए 7 7 49 एंड 7 1 7. ओके, वंस अगेन क्या करना है, हमको ग्रुपिंग करना है. ग्रुपिंग कैसे करना है, हमारे पास देखिए 3 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं. तो 3 बार आ रहे हैं, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. ये एक परफेक्ट क्यूब बना रहे. मेरा 2 का ग्रुपिंग भी कंप्लीट है, मेरे पास 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. बट द प्रॉब्लम लाइज विथ 7. मेरे पास 7 जो है केवल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि 10584 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज वन पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैव नॉट ग्रुप्ड वेल. वन पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स दैट आर 7 का ग्रुप कंप्लीट नहीं है. दैट इज व्हाई दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें सो एज टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट क्यूब. इस नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो जाए. तो आंसर विल बी कि आपके पास जो ग्रुप इनकम्प्लीट है उसमें उसको कंप्लीट कर दो. आपके पास जो ग्रुप इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर दो. सो 7 शुड बी मल्टीप्लाइड to 10584 to make it a perfect cube. To make it a perfect cube. Okay, 10584 में 7 मल्टीप्लाई करना चाहिए. 7 क्यों मल्टीप्लाई करना चाहिए, बिकॉज 7 का ग्रुप ही अकेला ऐसा ग्रुप है जिसकी कंप्लीट ग्रुपिंग नहीं है, जिसमें 3 का पेयर नहीं बन रहा. तो वो पेयर कंप्लीट करने के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. मान लो 2 का भी नहीं पेयर बन रहा होता तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते. और मान लो आपके पास अगर 7 अकेला होता तो मैं 49 से मल्टीप्लाई कर देता. ओके, 7 into 7 से मल्टीप्लाई कर देता. इसी तरह से सी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 विल बी by what smallest number each of the following be divided to get a perfect cube. ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे डिवाइड करने पे आपके पास नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए. पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई पूछा था, इस बार डिवाइड पूछा है. अगेन आई एम टेकिंग बी पार्ट. नंबर इज 5324. 2 plus 4 6, 6 plus 4 9, 9 plus 4 14. सो सबसे पहले 2 से 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6 0, 2 6 12. यहाँ पे सही से करना बेटा, ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे. 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6. अब किससे करें, 6 5 3. 6 5 3 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास कुछ आंसर आए. 7 से देखते हैं. 7 7 49. 7 से हो जाएगा. 7 9 63. नहीं, 7 से नहीं होगा. 3 से देखें. 3 2 6, 3 1 3. 3 से भी नहीं होगा.
और कोई सा नंबर हो सकता है? 9 से भी नहीं, 11 से भी नहीं होगा, 11 से कैसे हो पाएगा? और कौन सा नंबर हो सकता है बेटा? कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमको नंबर समझ में नहीं आता देखते, ठीक है? सो वी हैव टू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन टू गेट द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है मेरे ख्याल से। 5 3 2 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। बट आंसर जो है आपको कुछ अलग ही आ रहा है बेटा। ओके, लीव दिस पार्ट, ये पार्ट लीव कर देते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? टाइम लगेगा बेटा चेक करने में, तो इसलिए हम लीव कर रहे हैं। मैं आपको दूसरे पार्ट से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस टेक सी पार्ट। सी पार्ट इज 7290 और आपके इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से 5 5 7 ज़ा 35, 7 2 9 आएगा। 3 से 2 4 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। 3 का एक ग्रुप बन गया, 3 का दूसरा ग्रुप बन गया। 5 का ग्रुप कंप्लीट नहीं है। 5 का ग्रुप कंप्लीट कब होगा? जब इसमें 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई होगा। 2 का ग्रुप भी कंप्लीट नहीं है। 2 का ग्रुप कब कंप्लीट होगा? जिसमें 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा। सो अच्छा जी, मगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का नहीं पूछा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम दिस गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि हम ऐसे फैक्टर्स देखेंगे तो जो यूजलेस है, ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जिनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है? 2 और 5 ये क्या है कि फैक्टर्स ग्रुप नहीं बना रहे, तो इनसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो नंबर एक्सेस में है उन्हीं से डिवाइड कर देंगे। सो 7290 should be divided by 10 to make it a perfect क्यूब। इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना होगा? 10 से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी कल हम सेकेंड एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे एंड आई होप यू कैन डू द क्वेश्चंस नाउ। इसका बी पार्ट छोड़ देना, वी विल डिस्कस दिस। अगर क्वेश्चन सही है तो विल डिस्कस इट लेटर ऑन, अगर क्वेश्चन गलत है तो कटा रहने देना। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव ए नाइस डे।